Good afternoon, students. Welcome back here. Let's continue chapter 1. Okay, before watching this video, please watch our first video. You are watching right now part 2 of it. So I request you to please watch part 1. Part 1, the link will be given in the description. Clear? In this part 2, what we are going to do is that comparison and order of comparison of integer. Already the basics we have seen in part 1. Clear? So go through part 1 first, then please watch it and then come to part 2. And other request is that my second request is that please sit with notebook and pen. Please take your notebook and please take a pen. Notebook and pen is compulsory. Clear? Now let's continue. Let's start. We are trying to give the classroom atmosphere. So please have a notebook and pen. क्योंकि without class notebook and pen you are not allowed to sit in the classroom. Okay, I hope you will have. Okay, we have already seen the basics, okay, of integers and all. Positive numbers, negative numbers, okay, positive integers, negative integers, zero. Okay, we have already also seen the number line concept. Clear? What is number line? How the integers are represented on number line, कि number line पे integers कैसे होते हैं, कौन सी साइड क्या होता है. तो एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं. बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, कंपेयर करना है. यस्टरडे एक दो एग्जांपल तो मैंने दिए थे. ओके, so this is 0 in the middle, this is 0 in the middle. If this is number line, then 0 is in the middle. Then this is right side of, this is right side. Then the right side we have positive integers and this is left side. So left side we have negative integer. Already we know that. ओके, और एक दो एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसे किए थे. वी ऑलरेडी नो दैट इफ़ वी वांट टू कंपेयर -3 एंड -7. ओके, the same example I am taking right now. Otherwise, let's take another example. If we want to compare -2 and -9, -2 and -9. See students, very carefully. What we know for the comparison कि right side integers are greater than left side integers. Clear? जो इंटीजर्स राइट साइड पे होते हैं वो इंटीजर्स लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर्स होते हैं उनसे बिगर होते हैं. क्लियर? यू कैन राइट द सेम स्टेटमेंट इन अदर वे, दैट इज दिस. मीनिंग तो सेम ही रहेगा, हमने सिर्फ साइन चेंज किया. ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन, सिर्फ साइन चेंज किए. क्लियर? सो लेस देन पे जो है वो स्मॉलर है. किससे? तो जो राइट साइड है वहाँ से. क्लियर? जो माउथ है वो कहाँ पे खुलता है? तो राइट साइड पे. See, we are providing you the classroom atmosphere. So I will repeat the words. You have to mention those words. Okay, and you have to concentrate the words. Okay, and you have also look on this board. Now, what we know to compare -2 and -9. तो see, negative integers are on basically on the left side of 0. So suppose मान लो कि यहाँ पे 0 है, ये लाइन आगे जाती है, ये मिडल में ये 0 है. पॉजिटिव इंटीजर की अभी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमको उसकी कंपेरिजन नहीं करनी है. ओके, सो दिस इज़ -1. और ये एक चीज़ मैंने खास बताई थी आपको, जब 0 लिखो तो उसके बिल्कुल राइट साइड में 1 लिख दो एंड बिल्कुल लेफ्ट साइड में -1 लिख दो. ये 1 की सीरीज आगे जाएगी कैसे? 1 1 2 3. दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव. So we are not mentioning the sign +1 +2. We'll just write 1 2 3 4 up to infinite. Okay, बहुत सारे होते हैं. Then it is -1. Then left side पे भी जाएगा ना ये -1 जाएगा -2 -3 -4 up to infinite. ओके, वो भी सीरीज़ है. लेकिन ये खास चीज़ मेंशन करनी है क्योंकि समहाउ प्रॉब्लम क्या होता है. देखो, मैं रियल टाइम प्रॉब्लम क्या होता है एज अ स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो. तो कभी कभी ऐसे होता है, ये 0 लिख दिया, लेफ्ट साइड से -1 से आप ऐसे शुरुआत करते हो, तो सॉरी, दिस इज़ टोटली रॉन्ग. क्लियर? सो हम ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है. तो चलो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि कंपेरिजन करनी थी -2 एंड -5 की. तो मान लिया कि इधर 0 है, इधर -1 आ गया, ये -2 आ गया. क्लियर? देन -3, then -4, then -5. Okay, okay. Now see, -3 is here. Oh, why -2 was there? -2 and this is -5. So -5 is at left side and -2 is at right side. So what is our theory? This is our theory. ये याद रखो आप प्लीज़, इसको मेंशन कर दो. L is smaller than R. L is less than R. So what is L? -5. So you can easily write -5 and R is -2. You can compare it very well. Clear? Okay.
हमने और 3 चीज़ें सीखी थी, वो क्या है उसको भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक होना चाहिए कि ज़ीरो बीच में रखता हूँ ज़ीरो को, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इज़ greater than negative integers, and this zero is smaller than positive integers. Okay, from this you can say that positive integers are greater than negative integers. आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, अगर आपके लिखने की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है तो पॉज करिए, लिखो, समझो, बाद में आगे जाओ। क्लियर? आई होप कि आप नोटबुक में ये सारी चीज़ें मेंशन करते होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने कंपैरिजन आपको विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वो सिखाई, वो कब तक सही थी? जब तक हमारे पास स्मॉलर नंबर थे तब तक वो सही थी, लेकिन जब कंपैरिजन आ जाए -37 एंड -87, तब तक तो क्या हम नंबर लाइन थोड़ी यूज़ करेंगे ये सारे नंबर्स के लिए। तब हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। यहाँ पे आप 2 से 3 तरीके से उसको सीख सकते हो। लॉजिकल दिमाग लगाइए, हर बार आप सोचिए कि जब मैं -1 से स्टार्ट करूँगा तो -1, -2, -3, -4, तो -37 पहले आएगा। तो नेगेटिव की बात करें तो लेफ्ट साइड में -37 पहले आएगा, बाद में आएगा ना -87, तो -87 बाद में आया, तो -87 बाद में आया, तो लेफ्ट साइड पे वो भी लेफ्ट मोस्ट आ गया और ये राइट साइड पे हो गया। सो वी नो दैट L is R, so -87 is less than -37. ब्यूटीफुल कंसेप्ट। चलो ये भी पता नहीं है तो चलो यहाँ से थोड़े से एक रूल बेस जाते, एक बेसिक बेस जाते, तो आपको पता चल जाएगा। पहली कंपैरिजन, जब आपकी कंपैरिजन आ जाए किसके साथ? जीरो के साथ आ जाए, तब तक तो यू जस्ट फील नो वरी। जीरो के साथ जब आपकी कंपैरिजन आ गई तब देख लो क्या जीरो की कंपैरिजन पॉजिटिव इंटीजर के साथ है या जीरो की कंपैरिजन नेगेटिव इंटीजर के साथ है। प्लीज़ मेंशन दिस। जीरो के साथ में जब कंपैरिजन आ गई तो जीरो की कंपैरिजन किसके साथ है वो पहले देख लो, पॉजिटिव के साथ है कि नेगेटिव के साथ? पॉजिटिव इंटीजर के साथ है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आई एम नॉट टेलिंग 1 के साथ है 2, कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लिख दो ये कि जीरो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर जो भी है वो, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमेशा उस माउथ के अंदर रहेगा। क्लियर? अब जब नेगेटिव इंटीजर के साथ आ गई तो भी आप कुछ ऐसे लिख दो कि नेगेटिव इंटीजर और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। क्लियर? अगर आप एरो चेंज करते हो तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। क्लियर ना? ये प्लस पॉजिटिव इधर आ जाएगा जीरो साइड में, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसके साथ हमने कंपेरिजन की? ज़ीरो के साथ। ओके, डन। नाउ चलो इसके बेस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल क्या होते हैं। राइट? प्लीज मेंशन दिस इज इंपॉर्टेंट। जो मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू हैव टू मेंशन देम, यू हैव टू मेक। और मैं क्या चाहता हूँ कि आप हर एक डेट वाइज, हर एक लेक्चर वाइज उसकी नोट्स अलग अलग बनाइए, उसके सारे बेसिक देख लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। राइट? तो चलो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है उसके। तो चलो मैं जीरो के साथ कंपैरिजन करता हूँ। दिस इज एग्जाम्पल्स। ओके, नंबर 1 जीरो एंड -2, एंड द सेकेंड कंपैरिजन इज दैट जीरो एंड +15। ऑलरेडी वी नो दैट। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। जीरो कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर है तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए ये राइट है। क्लियर? -2 लेस देन ज़ीरो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हर बार ये स्मॉल ही होने वाला है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हर बार ग्रेटर ही होने वाला है। क्लियर? 15 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर इसको कुछ इस तरह से लिखूँ तो भी राइट है ये, जीरो -2 लिखूँ और इसको कुछ ऐसे लिखूँ मैं, जीरो इज लेस देन। समझ रहे हो ना आप ये बात? ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको एक इक्वेशन से पता चल जाना चाहिए। ओके, दिस इज द कंपेरिजन विद जीरो। याद रखिए, ये एक दो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी विल कंपेयर। यहाँ तक तो कंपेरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल कंपेयर पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं इसको सिर्फ साइन में लिखता हूँ। वी विल कंपेयर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ से भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज ग्रेटर होते हैं किससे? नेगेटिव इंटीजर से। ऐसे लिखो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन होते हैं किससे? तो पॉजिटिव इंटीजर से। क्लियर? जो भी साइड आपका पॉजिटिव इंटीजर है वहाँ पे आपका माउथ खुलेगा। क्लियर?
So this is the basic comparison. Let's see examples. We have 12 and we have -1. Okay, we have -99 and 9. See, this is the best example. Now see, पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज 12 पॉजिटिव इंटीजर, तो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसके सामने, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो तो 12 एंड -1 हो गया। यहाँ पे देखो, भले ही ये 9 है, आप ऐसा मत सोचो कि ये 990, ये 99 है, ज़्यादा है, लेकिन क्या वो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है वो तो ऑलवेज स्मॉलर ही होते हैं, किससे, तो पॉजिटिव से, तो हो गया ना -99 इज लेस देन 9। ओके, 9 अगर इस साइड होता तो मैं इसको ग्रेटर देन बना देता। क्लियर हो रहा है? अगर इस ऐसी भी कंपैरिजन आपके सामने आ जाए कि 1 है और इस साइड -1000 है, -1000 क्या, -1 लाख है, तो आपको वैल्यू नहीं देखनी है, ये साइन देखनी है पहले। ये भले ही 1 है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? कुछ बार ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है, -12 एंड +12, तो -12 +10, ये +12 है तो +12 के सामने ये खुलेगा, ये -12 हो जाएगा। ओके, नाउ टिल हियर दैट इज ओके। रूल नंबर 3, वी हैव ऑलरेडी सीन द 2 रूल्स। नाउ रूल नंबर 3, ये भी कंपेरिजन करनी है पॉजिटिव इंटीजर्स की, किसके साथ, पॉजिटिव इंटीजर के साथ। बिल्कुल डेप्थ से पॉइंट बाय पॉइंट जा रहे, प्लीज मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। पॉजिटिव इंटीजर्स विथ, और इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कुछ ऐसे हो गया है पॉजिटिव विथ पॉजिटिव। अब मैं आपको यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट वाली थियरी नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा नेचुरल प्रैक्टिकल बात हो गई। कैसे ये प्रैक्टिकल बात हो गई, यू हैव टू कंपेयर 4 विथ 5, 4 एंड 5, तो आप जानते हो कि 4 एंड 5, तो 5 ज़्यादा ही है प्लस में, तो 5 ज़्यादा है। 7 एंड 9, तो इसमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, 7 एंड 9, तो ये 7 एंड 9, 12 एंड 11, तो इट इज़ ऑलवेज दैट। तो पॉजिटिव में हमको वी कैन इजीली कंपेयर पॉजिटिव इंटीजर्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ तक रूल नंबर 3 तक, 3 रूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होगा, जब आप नेगेटिव, उसमें भी अगर आपने ध्यान रख लिया तो नो मैटर, आप जब नेगेटिव एंड नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें थियरी हम 2 से 3 तरीके से सीखेंगे। देखो, नेगेटिव विथ नेगेटिव, तो फर्स्ट कंपेरिजन आई एम डूइंग नेगेटिव विथ इज दैट -12 and -21. Okay, I am going to teach method number 1, -12 and -21। पहली मेथड है कि आप नंबर लाइन को इमेजिन करिए कि नेगेटिव है, मतलब ये आ गए जीरो की। अब जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो के बिल्कुल पास में -1 आ गया। ओके, -1। फिर जब -1 से गिनती स्टार्ट करोगे तो पहले कौन आएगा, तो नेगेटिव में जो फर्स्ट आया वो बिगर, नेगेटिव में जो फर्स्ट आया वो बिगर, जो सेकंड आया वो स्मॉलर। अगर 2 नंबर की कंपैरिजन करते हो, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ वो खास है कि नेगेटिव नंबर्स में जो फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट नेगेटिव आया, वो ग्रेटर होता है कि जो सेकंड आया उससे। सेकंड नेगेटिव से फर्स्ट नेगेटिव बिगर होता है। ओके, नाउ सी -12 एंड -21। जब आप नेगेटिव की गिनती स्टार्ट करो -1 से, तो पहले कौन आएगा स्टूडेंट्स, पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा -12 आएगा। हो गया -12, किससे ग्रेटर होगा, -21 से। क्लियर हो रहा है? आई थिंक मेथड 1 से ही क्लियर हो जाएगा। सपोज यू आर कंपेयरिंग, हम सिर्फ मेथड 1 ही देख रहे हैं कि सपोज यू आर कंपेयरिंग -53 एंड -35, और एक मैं साथ साथ में आपको ये भी कंपेयर करवाता रहूँगा। 53 एंड 35 में आई थिंक कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो प्रैक्टिकल हो गई। यू हैव 35 पेन्स एंड आई हैव 53 पेन्स, ऐसे सोच लो तो 53 पे ही आएगा एरो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। वो देखो 35 एंड -53, बट बोथ आर माइनस। ओके, तो जब व्हाट वी आर टेलिंग कि जो फर्स्ट आएगा वो बिगर होगा किससे, कि जो सेकंड आएगा। जो फर्स्ट आएगा वो ग्रेटर होगा किससे, जो सेकंड आएगा। जब आप 2 नंबर की कंपैरिजन कर रहे हो तब देखो यहाँ पे फिर -53 एंड -35, तो पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा -35, वो ग्रेटर होगा किससे, तो होगा -53 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर अगर कंपेयर करना है जब 3 नंबर हो तो क्या, तो सोच लो 3 नंबर हो तो आप इजीली कर सकते हो कि -12 हो गया, -9 हो गया एंड -31 ले रहा हो। तो चलो पहले कौन आ रहा है, अब देखो सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे पहले आएगा, तो -9 हो गया। क्लियर? अब
बची कौन किसकी, -9 के बाद कौन आएगा, तो -12 आएगा, तो -12 आएगा, ऐसे सीक्वेंस बनेगी कुछ। देखना ये एरो खास ध्यान में रखना, ग्रेटर का आएगा, राइट। फिर कौन आएगा, -31, तो ये हो जाएगा -31। ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा जब ये सारे पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव में थियरी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। हो गए सारे नंबर्स। आई थिंक ये एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये कंपेरिजन थी 2 या 3 इंटीजर्स की। ओके, जब हम कंपैरिजन करते हैं सारे जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, तो उसमें भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए कि सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले कौन आएगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होगा -2, तो हो गया -2। फिर क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया। ओके, फिर क्या होगा, ये 4, तो ये भी 4 हो गया। ये भी आप थियरी समझ सकते हो कि नेगेटिव, मैंने 3 बार लिखा उसको, तो नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है, आई थिंक इट विल बी क्लियर्ड। ओके, नाउ ये क्यों किया, तो वी आर गोइंग टू राइट द ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वी विल राइट असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एक ऑर्डर सीख लो, बाकी का तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। असेंडिंग सीख लो, डिसेंडिंग ऐसे ही आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, तो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे जो भी नंबर दिए है उसमें सबसे स्मॉलर है वो स्मॉलेस्ट पहले आएगा। फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे, मतलब ग्रेटर आते जाएंगे, एंड लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। क्लियर, प्लीज मेंशन दिस, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, एंड द रिवर्स वन इज व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ यू आर गेटिंग रिवर्स ऑफ इट, then it is what, that is descending order. Okay, now let's see one more example to clear out this thing. We are taking 4 numbers to compare if they are ascending or descending. Let's see, we have -6, we have 2, 0 and -1. Okay, arrange them in ascending order, -6, 2, 0 and -1. अब स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो पहले देख लो, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि क्या आप जो जितने भी नंबर दिए गए नंबर में क्या आपके पास नेगेटिव हैं, तो हाँ मेरे पास। प्लीज़ एक एग्जांपल ध्यान से देखो, बाद में आ जाएगा क्लियर। -6 एंड -1 है, मतलब हमारे पास नेगेटिव है। तो असेंडिंग ऑर्डर में नेगेटिव सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा है तो उनकी कंपेयर कर लो। अभी आप 2 एंड 0 के बारे में मत सोचो, अभी आप 2 एंड 0 के बारे में मत सोचो। क्या हो जाएगा, -6 एंड -1। ओके, अब -6 एंड -1 में स्मॉलर कौन है, तो जाहिर सी बात है कौन हो जाएगा, -6, फिर आ जाएगा -1। क्लियर, ये दोनों की कंपेरिजन हो चुकी, -6 एंड -1। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास 2 नंबर थे, कौन कौन से थे, 2 एंड 0। तो 2 एंड 0 में स्मॉलर कौन है, 2 एंड 0 में स्मॉलर कौन है, तो 0, फिर आएगा 2। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देख लो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर नेगेटिव थे तो आ गए नेगेटिव, उसके बाद आया 0, बाद में आ गए पॉजिटिव। हो रहा है क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इट इज 8, -8, 2 एंड -2। ओके, क्या हमको जो नंबर्स दिए गए उसमें नेगेटिव है, तो है तो उसको लिख दो। पहले नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव में आ गया -2 या -8, तो -8 आएगा पहले, बाद में आएगा -2। पता चल गया है ना क्यों -8 पहले आया, स्मॉलर है -2 से। अब ऐसा मत पूछना कि सर क्यों लिखा -8 पहले, -2 क्यों नहीं लिखा, नहीं, -2 पहले आता है, बाद में 8 आता है। कब ऐसा सोचेंगे, जब नेगेटिव है तब। कि आप 8 एंड 2 में ऐसा सोचने वाले हो कि कौन पहले आएगा, नहीं, 8 एंड 2 तो आपको पता है कि 8 बिगर है और 2 स्मॉलर है। क्लियर, सो -8 एंड -2 हो गया, तो हमारे पास ये 2 नंबर्स का हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब 8 एंड 2, तो अभी तो बताया मैंने 8 एंड 2 में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 एंड 8 हो गए, तो दिस इज़ ओके, दिस इज़ असेंडिंग ऑर्डर। अब जो असेंडिंग ऑर्डर आप लिख रहे हो उसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो आपका, आप सिर्फ एक सीखो, दूसरे में तो आप रिवर्स कर लो। उसके जहाँ पे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट था असेंडिंग में, तो डिसेंडिंग में क्या होगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करो। अगर ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग क्या होगा, कुछ यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, 8, देन इट इज़ 2, देन -2, देन -8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो दिस इज द थियरी ऑफ असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड कंपेरिजन। अब
देखो मैंने बोला ना क्लासरूम का एटमोसफियर, वी आर गिविंग यू द एटमोसफियर ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या मिलता है लेक्चर खत्म होने के बाद? What you will get? Nothing. Homework. So this is our homework for today's session. Student, please write नंबर वन आपको दोनों में अरेंज करना है, जो भी आप अरेंज करो, राइट? इट इज 7 -1 0 and 7. Sorry, I have already written the answer. Sorry, this is homework. Question number 1, you have to write 7 -1 1 and -7. Please make a note of it. This is your homework. And then it is 7 -5 1 and 0. Clear? Pause the video and then write. I am writing very fast. This is 3 -4 1 and -1. Clear? Fourth one is that -7 -19 0 and 2. Then I will increase the level. The last one is so beautiful. It is -9, then it is -11 -2 and -29. All are minus. Clear? Okay, we will just keep it to the sixth one. Okay guys, please do it. I hope the idea is clear and you will do this homework. Thank you so very much students. Stay connected with us for more videos. We will have the next topic very soon. Thank you so very much.